Hello, everybody. In the last lecture, we had completed with marketing decisions and what are the packaging strategies, what is branding. We had seen everything regarding that. We had also seen that how the things change when we change our packaging, when we change our branding and everything. And today we are going to start with, which we have also seen the pricing strategies. Okay. So, in this session, we are going to learn what are the different types of marketing where people decide how the thing should be and what are the different channels. Okay. So, direct marketing we had started. We had also seen that how the things change when we are talking about the direct channels. How do we manage the things which are related to that? And today we'll be seeing what are the different ways where we can market our products apart from selling it from the retail market and what are the different channels. Okay. So I think we had completed with this. What are the firm specific considerations? What are the institutional? I think we had seen this. Physical distribution we had completed and we had seen that how the things are when we are talking about influencing the product factors. Then we had seen what are the market factors. We had also seen what are the institutional factors and what are the unit or the specific firm related factors and environmental factors. Today we are going to start with what are marketing channels. Okay. So these are the different marketing channels and then they are divided into two. One is traditional and another is contemporary. So, what is traditional marketing? Traditional marketing is something where we are trying to market our product on our own, where the things are built, they are owned, and they're managed by the government or by the local bodies. Then, the system of bargaining between the seller and the buyer. Bargaining is one of the cultural forms of the market. So, see, what is bargaining? Bargaining का मतलब होता है कि भावताल करना. हमारे भारत में ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है जब भी हम सबर्ब मार्केट में जाते हैं या फ्ली मार्केट में जाते हैं, right? Then the place or the business that we are talking about is diverse and united in the same location. So though all are in the same location, they merchandise every seller in the different items. There is also grouping of merchandise according to the different materials that we are talking about, different items that we are talking about. Like we can see a proper fish market, or we can see a proper herb market, or a fruit market. So these are all the things where we can combine and collaborate, and then we form a market and we traditionally market those things. Most of the goods and services are offered locally. At the same time, we also have to take care about the location. We also have to take care about where we are selling our product. It has to be near the locality or near the local market so that it becomes very much easy for the other people to come and access that market. So there are some merchandise which are taken from the crops and the other which are taken or imported from the different countries also. So let's start with what is traditional marketing. So traditional marketing relies on offline strategies, which includes the sales, which includes the brochures, which includes coupons, magazines. So whatever are the different types of old marketing strategy like TV, they're all considered to be traditional marketing. B2B, we have to understand what is B2B. It is business to business, and it also means that there are few ways where we can still accept the product if they are through traditional marketing. Like रेफरल हो गया. रेफरल का मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ मतलब अगर आपको कोई चीज पसंद आ गया है सेल में या आपने कोई चीज खरीदा एंड यू आर वेरी हैप्पी using that product, so what you will do, you will go on promoting that product, right?
Then comes direct sales. Now, what is direct sales? Direct sales is something where it involves marketing, it involves consumers, it involves not a fixed location, but it is also done from the customer's home. घर टू घर जाना, फोन पर बात करके प्रोडक्ट्स को बेचना, इसको हम डायरेक्ट सेल्स कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेल, जो हमारे मेल बॉक्स में आता है, हम लोगों को पोस्ट कार्ड्स भेजेंगे, लेटर्स भेजेंगे, फ्लायर्स भेजेंगे या मेल करेंगे आज के जमाने में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं करके डायरेक्ट मेल। देन कम्स ट्रेड शो। ट्रेड शो एक ऐसा चीज है जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। B2B में वो लोग ट्रेड फेयर्स अटेंड करते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हो तो NSE ग्राउंड में होता है, जहां पर फेयर लगता है, अलग अलग लोग अपना, जैसे जनरली फन फेयर एंड एग्जीबिशन में होता है, उसे हम ट्रेड शोज कहते हैं। कार का एग्जीबिशन होता है, फैब्रिक्स का होता है, टेक्सटाइल रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स रिलेटेड होता है, उसे हम ट्रेड शोज कहते हैं। देन कम्स प्रिंट। प्रिंट मीडिया आज भी बहुत ज्यादा चलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर की तरह हो। आज से पहले, थोड़े जमाने पहले, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में येलो पेजेस हुआ करता था ना। व्हाट इज येलो पेज? येलो पेज एक बहुत बड़ा डायरेक्टरी होता था येलो कलर का, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते थे। लाइक इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनी नंबर, यू कुड इजीली, जो आज के तारीख में गूगल या जस्ट डायल करता है, वो पहले के जमाने में येलो पेजेस होता था। देन देयर समथिंग व्हिच इज नोन एज रेफरल मार्केटिंग। नाउ रेफरल मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। Now, what is word of mouth? Word of mouth is called as something where you typically enjoy your product and then you sell that product and you talk about that product. उसे हम word of mouth कहते हैं, राइट? यानी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि आपको कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है और आपने वो यूज किया और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करोगे, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? रेफरल मार्केटिंग, right? It is called as referral marketing. Now there's something which is also known as broadcast. Now what is broadcast? Broadcast का मतलब होता है where you have to advertise your products through broadcasting. अब broadcasting में क्या हो जाएगा? It is through radio, television, या अपने target audience को मीट करना है, तो देयर इज समथिंग विच इज नोन एज ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग। आजकल व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हम एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को, जो हम एक साथ मैसेज कर सकते हैं, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। अब ये होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं कंटेम्पररी मार्केटिंग। नाउ व्हाट्स कंटेम्पररी मार्केटिंग? द मार्केटिंग विच इज ऑक्यूपाइड इन ऑल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फ्रॉम बार्टर सिस्टम। लेकिन आज के तारीख में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो उसे हम कहेंगे कंटेम्पररी मार्केटिंग, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड रहता है। पहले के जमाने में मार्केट को फिर भी इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आज के जमाने में हम मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज मार्केट ओरिएंटेड, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सो मॉडर्न मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर सुप्रीमेसी इन मार्केटिंग। द मैनेजरियल अटेंशन वॉज फोकस्ड ऑन मार्केट एंड कंज्यूमर। ये दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, कि ये मार्केट पर भी ध्यान देता है और कंज्यूमर पर भी ध्यान देता है। Now it is also known as there's something which is known as consumer has become the pivot of all the business decision. Pivot का मतलब होता है the main person or the focal point of the business decisions that we are making. So managerial decision is one thing. Then comes the प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। जब प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तभी हम सेल्स ओरिएंटेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम सेल्स कैसे बढ़ा सके। कंज्यूमर ओरिएंटेशन में कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि अगर हम लोगों को ये बैलेंस करना है, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और कंज्यूमर ओरिएंटेशन, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? एंड प्रॉफिट कैन बी अर्न ओनली थ्रू सर्विंग द कंज्यूमर नीड्स। ओके, जब हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर देंगे, उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर देंगे, तो ऑफकोर्स हमारा सेल्स बढ़ेगा। अब जब सेल्स बढ़ेगा तो हमारा सेल्स ओरिएंटेशन वाला जो पॉइंट है या फोकस है, वो भी हम ध्यान में रख पाएंगे। सो फर्स्ट इन द कंटेम्पररी marketing it was consumer orientation. Second is modern marketing begins with the customer.
Now, when we're talking about modern marketing, which begins with the customer, we have to understand that the consumer who comes in the last stage, they accept the goods. There is no alternative. Okay, but now the situation has changed. The market has been developed from national to international. The competition is increasing day by day. So one has to be a little aware about what the consumer wants, as we have already seen that under consumer oriented marketing, it is very essential to know what the consumer wants. It is very important to know that how are we going to really change the way we are producing. And this line is very important because modern marketing is not modern, it is modern marketing begins with the consumers and it ends with the consumers only. And that's where marketing research has to be done. Because without research, we'll not be able to know, will not come to know that what the consumer wants. जब हमें पता नहीं चलता कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, हम कोई भी वैसा कुछ बना ही नहीं पाएंगे. सो फर्स्ट में हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को कंज्यूमर ओरिएंटेशन प्रोडक्ट बनाना है. सेकेंड, मॉडर्न मार्केटिंग में हमको थोड़ा सा रिसर्च करना है. देन एक और चीज है, प्रोडक्शन से पहले हमें उनके नीड्स और डिजायर्स के बारे में पता चलना है और अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से प्लान करना है. तो जब प्रोडक्ट प्लानिंग परफेक्ट और प्रॉपर हो जाएगा, उसके बाद प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम सेकेंडरी. सो बार बार इस पर्टिकुलर कंटेम्प्रेरी मार्केट में एक ही चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, दैट the consumer is the king. So, and the marketer has to know that how the consumer is going to make the product, okay, or how is he going to see the product, where it is very very important that we satisfy the needs of the customer, and also we are also understanding that what the customer wants. So modern marketing is a guiding element because people may choose one among the products. See, यहाँ पर एक बात बताया है, the businessman has to understand the economic development of the country. So he must also aim to raise the standard of living. So once the people start living in a proper standard wise, it is not only that their standard of living grows, but also the entire economy and the entire country's standard of living grows. So जब शहर से चेंज होते हैं, जैसे बहुत सारे गांव होते हैं, गांव से बदलकर लोग जब शहर बनते हैं और शहर से स्मार्ट सिटी बनते हैं, तो it is very important for us to know that how are we going to change the destiny of the people by changing the products that they use. Understanding? So it's very important that whatever products they purchase or whatever they product, they're not going to purchase. They have to see to it that what should be the advantages that we should give to the product so that they are going to buy that product. Because unless and until we're not giving them any advantage about the product, they're not going to buy our product, right? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उन्हें गाइड भी करें, हमने ये भी बताएं करके कैसे वो हमारा प्रोडक्ट खरीद कर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं. ठीक है. नाउ कम्स supply chain management. Now when we are talking about the supply chain management, we have to understand that आज के तारीख में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है वो सिर्फ प्रोडक्शन करना ही नहीं, लोगों तक पहुंचाना भी है. Because if you're not changing your raw material into finished goods in a proper manner, and even if you have completed your product into finished goods, but you are not sending it to the person who requires it, then the entire purpose will not be solved. Supply chain management handles all the process of how your product is made. It converts the raw material into finished goods, and also after production, how are you going to send that product to the person who is requiring it. Okay. So इसमें 3 पॉइंट है. फर्स्ट इज कस्टमर सर्विस. अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन मींस your customer receives order as per their expectations every time. So it applies your supply chain management. Then comes operating costs. It's very important that we understand that अगर ये वाला कहावत अगर आपने सुना है, मराठी में it is known as चार आण्याची मुर्गी 12 आण्याचा मसाला, एंड हिंदी में इट इज सेड आमदनी 18 खर्चा रुपए. यानी अगर मैंने प्रोडक्ट बना लिया 2 रुपए का, लेकिन उसको पहुंचाने का शिपिंग चार्जेस ही 20 रुपया है, तो लोग नहीं खरीदेंगे. तो हम लोगों को सिर्फ अपने प्रोडक्ट को मैनेज नहीं करना है, हम उसे कैसे डिमांडिंग पर्सन तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो ना ओवर स्टॉक होना चाहिए ना अंडर स्टॉक होना चाहिए. हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल में रखना है, सप्लाई कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखना है. दैट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके. Now comes financial management. Now when we're talking about the financial management,
we have to understand that the product $30 in 10 days. Yeah, example, if you can make your product $30 in 10 days, the customer, you give them 20 days early currency. So the visibility of the chain in your response can highlight that you can reduce your spending time and increase the profit margin. Now, there are two ways to manage the things. Either you manage in that manner where the things are growing nicely according to your time or according to your money. So it's very important that you have to manage either your time or your money. So प्रॉफिट दो तरीके से इंक्रीज हो सकता है. अगर आप स्पीड में बनाते हो तो आप ज्यादा बनाकर ज्यादा बेच पाओगे, और आप स्लो बनाते हो तो आप उसको इतना परफेक्टली बनाते हो कि आप कोई भी चांस ही नहीं छोड़ते उसमें कोई भी गलत होने का. So that is something which is known as financial management. Now we'll look at what are the components of supply chain management. So when we're talking about the supply chain management, we have to understand that the planning has to be done. Now what we need to plan, the planning is to be done in advance, like what to do, how to do, when to do, who is going to do it, and what are the different factors that we have to consider when we're talking about planning. So first planning is like we have to discuss strategically and we have to decide that what are the advantages of this planning and what are the challenges that we are going to face. दोनों का भी निरीक्षण करना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को प्लान कैसे करना है, क्या हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. अच्छा, प्रॉफिट होगा तो हमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा करके वो प्रोडक्ट बराबर है या नहीं है. ओके, देन कम सोर्सिंग. हमें कहाँ से सोर्स करना है अपने प्रोडक्ट. अगर हमें हमारा रॉ मटेरियल ही महंगा मिलता है तो हमारा आने वाला जितना भी कॉस्ट है वो एडेड एडेड कॉस्ट और महंगा हो जाएगा. So we have to understand that next step to get the raw material and any components is like the right time and the right amount. Okay, so optimal health chain management requires evaluating the supplier performance. So we need to understand that we are going to have a complete trust, how we have to import, how we have to export, what are the things that we have to take part, and what are the things that we have to remember. इसे हम कहते हैं sourcing. देन लोकेशन इज इम्पोर्टेंट. एक सूटेबल लोकेशन होना चाहिए जहां हम अपने बिजनेस को बना सके. अभी अगर पानी बहुत स्केर्स है और हमारे रिसोर्सेस में पानी इंग्रेडिएंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम अपना मार्केट उस जगह पर नहीं कर सकते ना, या अपना फैक्ट्री वहां पर नहीं स्टार्ट कर सकते जहां पानी नहीं है. तो एक सूटेबल और एक आइडियल लोकेशन का होना जरूरी है जब हम बिजनेस की बात करते हैं या प्रोडक्शन की बात करते हैं. तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमने देखा प्लानिंग करना है, फिर हमने देखा सोर्सिंग करना है, एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए. Then comes how are we going to make it? That is the preparation, the assembling, the testing, and the packing activities that take place. So to be very, very careful about the regulatory compliances. So how are we going to store our data? How are we going to see to it that the things are becoming better? Then what are the delivery channels, जिसको हम लोग logistics बोलते हैं. So what are the steps which are involved in processing, delivering, transporting the orders? So paying the service provider is also very important क्योंकि warehouse दोनों में जरूरी है. How are we going to see to it that the trial and warranty becomes important? So it's very important. Then अगर कोई return या refund policy है तो वो कैसे हम करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए करके वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर सेलिंग अगर डिफेक्टिव निकला तो कस्टमर्स हैव टू बेयर द बर्न्स. नो, वी हैव टू टेक, वी हैव टू सी दैट वी आर टेकिंग बैक दैट प्रोडक्ट. तो उसका पॉलिसी क्या होना चाहिए. तो रिफंड अगर देते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा रिफंड में जा रहा है, हमारा पैसा ही नहीं निकल रहा है. तो अगेन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए वी हैव टू सी टू इट दैट हाउ आर वी गोइंग टू change our performance, how are we going to change our cost, how are we going to see that the inventory is really in a good condition, that we have to take care. Okay, now comes the next part, that is promotion of the activity. Now while promotion we're talking about is promotion is a part of marketing. Of course हमने पहले भी पढ़ा है ये. तो प्रमोशन में क्या क्या आता है. प्रमोशन में आता है पब्लिक रिलेशन, उसमें आता है एडवर्टाइजिंग, उसमें आता है कैसे हम अपने मार्केट में अपने गोल को अचीव करेंगे. तो ये कैसे अचीव करेंगे, तो वी आर गोइंग टू कैप्टिवेट एंड एजुकेट द परसुएसिव थिंग्स. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. तो उसमें सबसे पहला आया एडवर्टाइजमेंट. अनलेस एंड अनटिल वी नो that how are we going to advertise our product and we don't know that how the other people will become aware about our product, nobody is going to buy our product. So it's very important that we make the people aware that
we are going to buy or we are going to sell the product, and first we want to make aware about the product. तो how are we going to make the people aware that हम लोग exist करते हैं? तो अलग अलग मीडिया है, जैसे एडवर्टाइजिंग में हो गया, टेलीविजन हो गया, बिलबोर्ड्स हो गया। बिलबोर्ड्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर हो गया, हाईवेज पर हो गया, उसे बिलबोर्ड्स कहते हैं। फिर रेडियो के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, मोबाइल एप्स, ईमेल्स, वेब पेजेस, ये अलग अलग तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के, जहां हम अपने कंज्यूमर्स को बताते हैं कि हम लोग ऐसा वाला प्रोडक्ट बनाते हैं और ऐसा वाला प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक द पीपल अंडरस्टैंड। सो एडवर्टाइजमेंट के बाद आता है पब्लिक रिलेशन। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू चेंज अवर इमेज इन द आईज ऑफ द पब्लिक? सो यहाँ हमें बार बार प्रमोशन करते रहना है, प्रेस रिलीज करना है, उनके एक्टिविटीज के बारे में बताना है, लोगों को ये बताना है कि यस वी एग्जिस्ट, सी हाउ वी हैव डन द थिंग्स, हाउ द थिंग्स चेंज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक रिलेशन। लोगों के नज़रों में, न्यूज़ में हमेशा अच्छे कैसे बने रहना है, पब्लिक के सामने एक इमेज कैसे बनाना है, यहाँ पर ये आता है प्रमोशन में। इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट बट ऑल्सो द ब्रांड विच स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अवर प्रोडक्ट। देन कम सेल्स प्रमोशन। हम जब सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो कूपन्स देना है, 1 पर 1 फ्री देना है, अट्रैक्ट कैसे करना है कस्टमर्स को ताकि वो सेल्स करते ही जाए, रिकरिंग सेल्स होता रहे, कस्टमर्स इंटरेस्ट बना रहे हमारे में, हमारे प्रोडक्ट में, आई मीन टू से दैट अच्छा मार्केट शेयर बना रहे। तो अलग अलग तरीके के सेल्स प्रमोशन करने हैं, कूपन्स देंगे या कोई भी गिफ्ट आइटम देंगे उसके ऊपर, या we can say that we are going to sell it by the means of giving discounts or by offering them something valuable. So that is sales promotion. Then comes direct marketing, जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि इंटरैक्टिव कस्टमर वेबसाइट होता है, ईमेल्स होता है, डायरेक्टली मोटिवेट करता है कस्टमर को कि उन्हें कैसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना है। वो मेजरेबल सीओएस लेंगे फॉर्म कस्टमर से रिलेटेड। कोई भी एक्शन अगर लेना है, कि अगर क्वेश्चन पूछा है किसी कंज्यूमर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में कि इसका कॉस्ट क्या है, अगर मेल किया है तुरंत हम उसको जवाब दे पाए, ऐसा हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाने का। देन कम्स पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग इज लाइक इंडिविजुअल सेलिंग भी होता है, जब हम दुकान में जाते हैं तो हमारे साथ सेल्स पर्सन डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, या पोटेंशियल कस्टमर को जब हम फोन करते हैं तो क्या वो पोटेंशियल कस्टमर एक्चुअल कस्टमर में चेंज होगा या नहीं होगा। बहुत सारी बारी डेटाबेस लेकर लोगों ने रैंडम कॉल्स करते हैं, टारगेट्स दिया जाता है। So these are all the ways where we can personally also sell the product. Either it can be face to face or phone to phone. So ये कम efficient है other components से, but yes it still works. Okay. So ये था promotion mix, अलग अलग तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें है एडवर्टाइजमेंट, बाद में है पब्लिक रिलेशन, बाद में सेल्स रिलेशन या सेल्स प्रमोशन, then comes direct marketing, then comes personal selling, and the next we are going to learn is like what is the importance of promotion mix. इसमें सबसे पहले आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है करके हम कैसे अपने पब्लिक को अपने कंपनी के सामने वैलिड दिखाएंगे, या कैसे उनके दिमाग में, उनके माइंड में एक अच्छा सा strengthen their image in front of the eyes. So public presentation of your company, it helps in strengthening the belief of the validity and preeminence in the minds of the customer. एक अच्छी राय बना लेते हैं लोग हमारे बारे में, उसे हम credibility कहते हैं, जिसे हिंदी में औकात भी बोला जाता है कि हमारे प्रोडक्ट का औकात क्या है लोगों के नजरों में। Then comes brand name strengthening in the minds of the कस्टमर। तो कुछ ऐसा इजी ब्रांड नेम रखते हैं जहां पर लोगों को हमेशा याद रहे। नाइजीरिया में एग्जांपल दिया, नूडल मार्केट को इंडोमनी कहते हैं, इंडोमी। या हमारे हमारे देश में इट्स मोस्ट ऑफ नूडल मार्केट को लोग मैगी ही कहते हैं। तो ये ब्रांड नेम जो है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है लोगों के माइंड में। देन अपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे करवाना है, तो मोस्ट कॉमन रीजन फॉर कंपनीज टू एंगेज इन द एडवर्टाइजिंग इज टू प्रमोट द सेल्स एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट. So we have to remember that how are we going to increase our sales, because हमारा फाइनल गोल तो वही है करके हम अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएं.
देन इट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप। एक बार अगर हमने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को और अपने कंपनीज को बना दिया है, तो रिटेलर्स के साथ प्रमोशन मिक्स के द्वारा हम एक अच्छा सेगमेंट, एक अच्छा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप मार्केट बिल्ड कर सकते हैं। फिर स्टिल एक्साइटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ आर वी गोइंग टू excite the people, how are we going to see to it that they are turning, they are shopping in a very nice experience. So you can turn the solitary shopping into a living. This is also again a very important thing, that if the person is very excited to buy some product, then things change. जैसे पहली बार जब कोई बंदा अपने लिए कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, मोबाइल फोन खरीदता है, और अगर अपने पैसे से खरीदता है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग रहता है। तो सेल्स एडवर्टाइजिंग के दौरान इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाउ डू यू स्टर द एक्साइटमेंट ऑफ द पर्सन, where he is not doing the shopping just for the heck of buying the things, but also for the possession वाला एक फील, एक प्राउड फील भी होना चाहिए जब वो अपने प्रोडक्ट को बाय करते हैं तब। देन यू हैव टू डिटरमाइन योर कस्टमर, लाइक यू हैव टू डिटरमाइन लाइक हु इज अ प्रायोरिटी। कोई सिग्नेचर बिहेवियर है क्या? अगर ज्वेलरी स्टोर पर जाते हैं तो वही लोग जा पाएंगे जिनका इनकम ज्यादा है। दिवाली में वगैरह अगर लोग खरीदते हैं तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग अपने डिजाइन्स को बढ़ा देते हैं, क्योंकि तभी शायद लोग धनतेरस, हिंदू सेंटिमेंट्स को अगर ध्यान में रखें तो लोग तभी खरीदते हैं, पाड़वा पे खरीदते हैं। तो ये सारे सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर अपने कंज्यूमर्स को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। देन सेट योर गोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर यू डिटरमाइन अबाउट योर प्रोडक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेट योर गोल. So unless and until you don't set your goal, you'll not come to know that why we are in the market. तो अपने स्टॉक पर इधर ध्यान दो, या अपने मार्केट को बढ़ाना है, मार्केट को डेवलप करना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट कंपनीज दैट यू हैव टू थिंक. देन कम्स measures the results and make adjustments. Very important that how do you measure your results, because अगर प्रमोशन है, if you are growing in numbers, अगर आपका ब्रांचेस ज्यादा ओपन हो रहा है, अगर आपके ब्रांड हर जगह पर पैन इंडिया में अवेलेबल है, तो यू कैन मेजर योर रिजल्ट. ओके, आई स्टार्टेड, निर्मा का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी. दे ऑल स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल फर्म, a very small company, and now when it was it had broken even the records of Hindustan Unilever at that time. तो दे हैड मेजर्ड देयर रिजल्ट्स दैट कम प्राइस में पैन इंडिया पर वो लोग मौजूद थे. तो ये ध्यान देना है करके, जब भी हम अपने सेल्स को इंक्रीज करते हैं तो पता चलता है करके हम मार्केट में कब तक है और कैसे अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है. देन कम्स पब्लिक इंफॉर्मेशन. लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए. अगर नहीं मालूम होता है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड. So it's very important for them to understand that what our things that we are going to sell. So there's again a very small part which is remaining in this, and that is like what are the different ways where you can affect the, what are the different factors which can affect the promotion mix apart from publicity and all. The first is like product type. So we have to understand that there are two types of products in the market. One is branded and the another is non-branded. So we come in which category? So it's very important for the non-branded products कि उसका sales बहुत strong होना चाहिए, क्योंकि branded products तो नाम पे बिकता है, अनब्रांडेड जो है उसका मार्केट बहुत ज्यादा है. तो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए. क्या इधर हम क्वालिटी पे बेच रहे हैं या प्राइस पे बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट टाइप क्या है वो हमें समझना चाहिए. Then comes product usage. So consumer goods generally target more consumers than the industrial goods. It's very important that the personal sales has to be very nice. Then comes a target market. Never ever forget who are our target audience, because when talking about the integrated, it's only the individual sales that counts. तो लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे, टीवी पे जाएंगे, एड्स पर देखेंगे, तो हमारा जो टारगेट मार्केट है वो हमेशा हमारे ध्यान में, उनके जहन में हमारा प्रोडक्ट, हमारा नाम, हमारा ब्रांड याद रहना चाहिए. Then comes availability of funds. Again, this is very important when talking from the business point of view, क्योंकि कोई भी advertisement never comes free of cost. So individual sales अगर हम करना है तो it comes with a cost. तो advertising भी करना है तो हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए, हमारे पास उतना funds होना चाहिए. अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है, funds नहीं है, then how are we going to sell our product in the market? तो बहुत important होता है कि जब हम हमारे funds को ध्यान दें तो हमारे पास कितने पैसे हैं, कैसा हमारा फंड है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. देन कम्स मार्केट कॉम्पिटेंस. तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो व्हाट आर द मार्केटिंग कॉम्पिटेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड.
So some markets do not have experience because कैंपेनिंग करने नहीं आता है, उनका सक्सेसफुल नहीं होगा. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे भी रहेंगे करके बिना एडवर्टाइजिंग के भी चल जाते हैं, और कोई कोई बिना एडवर्टाइजिंग के चलेगा ही नहीं. तो यू नीड हैवी एडवर्टाइजिंग इन दिस. सो मार्केटिंग डिसीजंस का 3 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है. हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ये देखा कि प्रमोशन क्या है, कंटेम्प्ररी और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, कैसे ज़रूरी होता है, कौन सा फैक्टर्स ज़रूरी है प्रमोशन मिक्स के लिए. दैट ऑल थिंग्स वी सॉ इन दिस पर्टिकुलर chapter. Okay. Thank you, and we'll meet again with the next session. We're going to start with the new topic in that particular session. Thank you very much. Stay happy, stay blessed.